Lesson 10. The name of the lesson is थॉमस अल्वा एडिसन. डियर स्टूडेंट, इस लेसन में थॉमस अल्वा एडिसन की लाइफ के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्होंने नई नई चीज़ों का आविष्कार किया, क्या क्या चीज़ों की उनको नीड हुई. अब हम इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे. What are you doing there, Tom? Nothing, father. I am only trying to find out if I can hatch eggs. Hatch eggs? What do you mean? You are not a duck or a hen. Of course I am not, but you told me that a duck sits on its egg and hatches them. I am much bigger than a duck, and so I am sure I can also sit on duck's egg and hatch them. The child who tried to hatch egg was Thomas Alva Edison, the inventor of the gramophones and the electric bulb. He was born on 11th February 1847 at Milan, Ohio, in the United States of America. His teacher did not think much of him, but his mother knew that Tom was very intelligent and always ready to experiment. At the age of 8, the boy had set up his own laboratory and started doing his experiment. Tom, तुम वहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं पिताजी, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अंडे दे सकता हूँ. क्या मतलब है? तुम अंडे नहीं दे सकते. तुम कोई मुर्गी या बतख नहीं हो. बेशक मैं नहीं हूँ, लेकिन आपने ही मुझे बताया था कि एक बतख अपने अंडों पर बैठती है और उन्हें सहती है, तो मैं तो एक बतख से भी बड़ा हूँ और इसलिए मुझे यकीन है कि मैं बतख के अंडे पर भी बैठ सकता हूँ और उन्हें सह सकता हूँ. लड़का जो अंडों को सहने की कोशिश कर रहा था वो थॉमस अल्वा एडिसन था. उसने इलेक्ट्रिक बल्ब और ग्रामोफोन का आविष्कार भी किया था. उनका जन्म 11 फरवरी 1847 में मिलान में ओहियो यूएसए में हुआ था. उसके जो टीचर थे वो उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, पर उनकी मदर जानती थी कि टॉम बहुत ही बुद्धिमान है और हमेशा प्रयोग करने के लिए तैयार रहते हैं. 8 साल की उम्र में उन्होंने खुद के लिए एक लेबोरेटरी भी तैयार कर ली थी. Even as a boy, Tom worked hard to earn enough money to buy the thing he needed for his experiment. Later, he learned telegraphy and started working as a telegraph operator. He lost many jobs, not because of his laziness. In fact, he worked very hard, but he spent a lot of time in experiment in order to find out new things. So his employers felt that he was wasting his time. Only one of his employers, Mr. Millikan, believed that Edison really had new ideas. He helped the young man in every way, and soon Edison invented something very useful. टॉम ने बहुत कठिन परिश्रम किया और काफ़ी पैसा भी कमाया ताकि वह उन चीज़ों को खरीद सके जो उनको एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए थी. बाद में उन्होंने टेलीग्राफी भी सीखी और बाद में टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम करने लगे. उन्होंने कई जॉब खोई, इसलिए नहीं कि वे लेजीनेस थे, वे बहुत हार्ड वर्क थे और वो कोई भी चीज़ को ढूंढने में काफ़ी समय लगाते थे. उनके साथ काम करने वालों को ये लगता था कि वे अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं. उनका एक ही एम्प्लॉय था जो कि समझता था कि उनके पास वास्तव में कई आइडियाज़ हैं. वह यंग मैन की हर तरह से मदद करता था और जल्दी एडिसन ने नई खोज का आविष्कार किया. We send messages by wire. This is called telegraphy. But in those days, only one message could be sent at a time along a wire. Edison worked hard in order to make it possible to send more than one message at the same time, and he succeeded. This was no doubt an important invention, but it was only a beginning. Soon, Edison gave up his job in order to spend all his time in the laboratory experimenting and inventing. In 1869, he went to New York, where he improved the machine for sending message. A certain General Lefford wanted to buy the new invention. The general was sure that it was extremely useful, so he offered Edison $40,000 for the invention. Edison was surprised. It was a very large sum of money, and he had thought that he would be able to sell the new machine for only about $4,000.
Now Edison had enough money to start a factory and a laboratory. He employed number of assistants. He was a very good employer and very kind to all his assistants. He worked very hard himself and also made other work hard. In his laboratory, he conducted many experiments and invented some very useful and interesting things. One day he told his assistant that he was going to make a new machine, a talking machine. हम वायर से मैसेज भेजते हैं जिनको टेलीग्राफी कहा जाता था, लेकिन उन दिनों एक समय में एक ही मैसेज सेंड किया जा सकता था एक ही वायर से। लेकिन एडिसन ने हार्डवर्क किया और इसके लिए कोशिश की कई मैसेज को सेंड भी किया जा सके एक ही समय में, और वे इसमें सफल भी हो गए। यह इसमें कोई संदेह नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण आविष्कार था, लेकिन यह केवल एक शुरुआत थी। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और सारा टाइम एक्सपेरिमेंट और लेबोरेटरी में लगा दिया। 1869 में वो न्यूयॉर्क गए, जहां उन्होंने संदेश भेजने में सुधार किया। एक जनरल लेफर्ड ने नया आविष्कार खरीदना चाहा। जनरल को यकीन था कि यह बहुत संदिग्ध था। इस आविष्कार के लिए एडिसन को $40,000 दिए जाए। एडिसन आश्चर्यचकित थे। यह बहुत बड़ी धनराशि थी और उन्होंने सोचा कि वह नई मशीन केवल $4,000 में बेच सकेंगे। अब एडिसन के पास पर्याप्त मनी थी फैक्ट्री और लेबोरेटरी के लिए। उन्होंने नए सहायकों को नियुक्त किया। वह एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयर था अपने असिस्टेंट के लिए। वह बहुत दयालु थे और स्वयं कठिन परिश्रम करते थे और दूसरे से भी करवाते थे। उनकी लेबोरेटरी में बहुत सारे उपयोग किए और रोचक चीज़ों का आविष्कार किया। एक दिन उन्होंने अपने असिस्टेंट को बताया कि वह एक नई मशीन बनाने जा रहे हैं जो बात करने वाली मशीन होगी। A talking machine, said one of his assistants. Are you sure it is going to talk? Yes, answered Edison. I am afraid that no machine can ever talk. I am prepared to bet on it. I am sure I will win it. But what is the bet? A box of cigars, said the assistant, who was sure that he was going to win. But he was mistaken, and he lost the box of cigars to Edison. Edison produced the first talking machine. It looked very funny, but it could talk. The modern gramophone is only an improvement of on this talking machine. उनके एक असिस्टेंट ने कहा कि क्या ये एक बोलने वाली मशीन है? क्या ये बात करेगी? एडिसन ने कहा, हाँ, मुझे डर है कि कोई भी मशीन कभी बात नहीं कर सकती है। मैं इस पर एक शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं श्योर हूँ इसके लिए, और ये मैं जीतूंगा ही। लेकिन शर्त क्या है? सिगार का डब्बा। सहायक को पता था कि वह जीतने वाला था, लेकिन वह गलत था। एडिसन जीत गया और एडिसन ने एक बात करने वाली मशीन का आविष्कार भी किया जो दिखने में बहुत फनी थी, लेकिन वो बोल सकती थी। मॉडर्न ग्रामोफोन वो इसी बोलने वाली मशीन का एक रूप है। Perhaps Edison's most important and useful invention was the electric bulb. He worked for nearly 2 years to invent the first electric bulb. He spent about $40,000 to find out the best material for making the filament. He tried many kinds of material for the filament. At last, in 1879, he was able to produce the first electric bulb. 3 years later, many homes in New York had electric lights. Edison worked hard till the very end of his life to make the world a happier place to live in. He improved telegraphy, bells, telephone, and the Remington typewriter. He invented the electric fan, and in 1913 he also produced the first talking picture. And before his death in 1931, this great inventor had produced or improved about 1,000 things.
When he died, the electric light were turned off for a while in many American homes as a mark of respect for the men who had given them those lights. शायद एडिसन का सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी आविष्कार बिजली का बल्ब था। उन्होंने पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने के लिए लगभग 2 साल तक काम किया। उन्होंने फिलामेंट बनाने के लिए सबसे अच्छी सामग्री का पता लगाने के लिए लगभग $40,000 खर्च किए। उन्होंने फिलामेंट के लिए कई तरह की सामग्रियों की कोशिश की। अंत में 1879 में वह पहला बिजली का बल्ब बनाने में सक्षम रहे। 3 साल बाद न्यूयॉर्क के कई घरों में रोशनी थी। एडिसन ने दुनिया को जीने के लिए और खुशहाल बनाने के लिए कई प्रयास किए। अपने जीवन के अंत तक कड़ी मेहनत भी की। उन्होंने टेलीग्राफी, बेल के टेलीफोन, रेमिंगटन टाइपराइटर में सुधार किया। उन्होंने बिजली के पंखे का आविष्कार भी किया और 1913 में उन्होंने टॉकिंग पिक्चर भी बनाई और 1931 में उनकी मृत्यु से पहले इस महान आविष्कारक ने लगभग 1000 चीज़ों का उत्पादन या सुधार किया था। जब उनकी मृत्यु हुई तो कई अमेरिकी घरों में बिजली की रोशनी बंद कर दी गई थी, उनके सम्मान के निशान के रूप में, जिसने उन्हें रोशनी दी थी।